فلم کی شروعات میں ایک عورت کو دکھایا جاتا ہے جسے ہم مدرز کہتے ہیں، جو FBI کے افیسر ویل کے ساتھ ہوتی ہے۔ ویل اسے دو آدمیوں کی تصویریں دکھاتا ہے۔ مدرز ان دونوں میں سے ایک کا نام ایڈریان اور دوسرے کا نام ہیکٹر بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہیکٹر ایڈریان کے لیے اسلحے کی سمگلنگ کا سودا کرتا ہے۔ مدرز ان کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ بچوں کی سمگلنگ میں بھی ملوث ہیں، اور مدرز ویل کو ان کے کافی سارے ہتھیاروں کی جانکاری بھی دیتی ہے۔ اور وہاں پر ویل یہ سوچتا ہے کہ یہ جگہ محفوظ ہے۔ اسی وقت FBI کے لوگوں پر گولیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کا ایک آدمی موقع پر مر جاتا ہے۔ پھر ویل مدرز کو اوپر لے کر جا رہا ہوتا ہے اور آگے ایک آدمی آ کر ویل کو گولی مار دیتا ہے۔ پھر مدرز ویل سے گن لے لیتی ہے اور اسے ایک کمرے میں لے جاتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے۔ پھر مدرز باتھ روم میں چلی جاتی ہے اور اسی وقت ایک تاخیر والا بم تیار کر لیتی ہے کیونکہ وہ پریگننٹ ہوتی ہے۔ اسی وقت ایڈریان باتھ روم میں آ جاتا ہے اور مدرز اسے گولی مار دیتی ہے، لیکن ایڈریان اس کے پیٹ میں چاقو مار دیتا ہے۔ اسی وقت وہ تاخیر والا بم بھی پھٹ جاتا ہے۔ بم کے پھٹنے سے ایڈریان بہر کی طرف جا گرتا ہے اور اسی وقت مدرز کی بھی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر مدرز باتھ روم کے فوارے کو چلا دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت تھوڑی درست ہوتی ہے، اور اس حادثے کے بعد مدرز کو ہسپتال میں دکھایا جاتا ہے جسے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تب وہاں پر افیسر مایا آ جاتی ہے۔ وہ مدرز کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو اس سے دور رکھے گی، لیکن مدرز کو اس کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ مایا مدرز کو بتاتی ہے کہ تمہاری ہی وجہ سے FBI کے 8 افیسر مارے گئے ہیں، اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اب تمہارا نام دنیا کے بڑے 2 غنڈوں کی لسٹ میں آ گیا ہے اور وہ تمہاری بیٹی کو مار دینا چاہتے ہیں۔ پھر مدرز یہ بھی سوچتی ہے کہ میری ہی وجہ سے میری بیٹی کی جان کو کتنا خطرہ ہے۔ مایا اسے کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کا خیال افیسر ویل ہی رکھے گا۔ اس کے بعد مدرز ویل کو جا کر ملتی ہے جو گولی کھانے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ مدرز ویل کو اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کا بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی ہر سالگرہ کا لیٹر اور اس کے ساتھ اس کی تصویر مجھے دیتے رہنا۔ کہتی ہے کہ اگر میری بیٹی کی جان کو کسی طرح کا خطرہ ہو تو مجھے فوراً کال کر دینا۔ تو ویل مدرز کو ہاں بولتا ہے اور مدرز آخری بار اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر وہ آئسی لینڈ میں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک جونس نام کے آدمی سے ہوتی ہے۔ وہ اسے جنگل میں ایک گھر کی طرف لے جاتا ہے اور مدرز کو وہ وہاں پر بھیڑیے کا شکار کرنے کا کہتا ہے، اور وہ اسے گھر پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد 12 سال گزر جاتے ہیں۔ اب مدرز اس جگہ پر رہنے اور شکار کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر جونس آتا ہے۔ وہ مدرز کو اس کی بیٹی کے برتھ ڈے کا لیٹر دیتا ہے۔ اس لیٹر میں مدرز کی بیٹی کی تصویر ہوتی ہے اور اس لیٹر کو دیکھ کر مدرز کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی تو خطرہ ضرور ہے۔ اس کے بعد مدرز اس جگہ سے نکل کر واپس امریکہ میں آ جاتی ہے۔ وہاں اسے لینے کے لیے ویل آ جاتا ہے۔ وہ مدرز کو بتاتا ہے کہ FBI نے ہیکٹر کے اڈے پر چھاپا مارا تھا۔ وہاں پر انہیں کچھ ہتھیاروں کے ساتھ تمہاری بیٹی کی تصویر بھی ملی ہے اور اس میں تمہاری بیٹی کی پوری جانکاری بھی ہے۔ اور مدرز اپنی بیٹی کی تصویر کو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی بیٹی بہت بڑی ہو چکی ہے۔ مدرز کہتی ہے کہ میں ایڈریان اور ہیکٹر کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر مدرز اپنی بیٹی کے سکول میں جا کر اس پر نظر رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ تب وہاں پر اسے اس کی سوتیلی ماں لینے آتی ہے۔ مدرز اس کے گھر پر بھی نظر رکھتی ہے۔ پھر ایک دن وہ سکول کے پاس والی جگہ پر اپنی بیٹی پر نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے۔ پھر وہاں پر ایک گاسی نام کا گنڈا آتا ہے۔ مدرز اسے پہچان لیتی ہے۔ مدرز کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہاں پر کچھ تو ہونے والا ہے۔ گھاسی کے گنڈے مدرز کی بیٹی کو پکڑ کر لے جا رہے ہوتے ہیں تو مدرز ان پر اپنی گن سے شوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن گھاسی اس کی بیٹی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کے آدمی مدرز کے پاس آتے ہیں اسے مارنے کے لیے۔ تو مدرز ایک گاڑی میں بیٹھ کر اس گاڑی کو ان پر چڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد جب مدرز گاڑی سے باہر آتی ہے تو وہاں پر ویل بھی آ چکا ہوتا ہے اور یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے جاتے
हैं और मदर्स को विल पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि विल ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन विल को इसके बारे में कोई खबर नहीं होती। रात को मदर्स अपनी बेटी के घर में जाती है जहां पर वो रहती थी। मदर्स को वहां पर अपनी बेटी की कई तस्वीरें दिखाई देती हैं। उसके बाद विल मदर्स को बताता है कि उसकी बेटी क्यूबा में है और फिर ये दोनों वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब ये क्यूबा में पहुंचते हैं तो वो वहां पर गासी को एक होटल के अंदर देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गासी वहां से भाग जाता है। फिर मदर्स उसका पीछा करती है और उसे एक गाड़ी से टक्कर मार देती है। फिर मदर्स घासी को एक जगह पर ले जाती है और उसे वो वहां पर बहुत मारती है। फिर घासी उसे हेक्टर के एक अड्डे के बारे में बताता है। फिर मदर्स घासी को मार डालती है और विल के साथ वहां से चली जाती है। उसके बाद इन दोनों को एक होटल में दिखाया जाता है। मदर्स विल के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। फिर विल मदर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता है क्योंकि मदर्स ने उसकी जान बचाई है। फिर विल वहां पर मदर्स से पूछता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। फिर मदर्स विल को अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि कई साल पहले अफगानिस्तान में उसे स्नाइपर चलाने के लिए ट्रेन किया गया था। वो कहती है कि मैं अपने काम में बहुत एक्सपर्ट थी, इसलिए मुझे एड्रियन के साथ काम पर लगा दिया गया क्योंकि एड्रियन हथियारों की स्मगलिंग करता था और इस काम में उसका साथ हेक्टर देता था जो कि मिलिट्री के हथियारों को चोरी करके बेचा करते थे। क्योंकि मेरे रिटायर होने के दिन करीब थे, इसलिए मैं इन दोनों को इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमाना चाहती थी। और अगले दिन ये दोनों एक घर के करीब होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। मदर्स को पता चल चुका होता है कि उसकी बेटी इस घर के अंदर है। मदर्स अपनी गन से घर के बाहर जो भी गार्ड होते हैं उन सबको मार डालती है। फिर मदर्स घर के अंदर जाकर बाकी गार्ड जो बचे होते हैं उनको भी मार डालती है और उसे अपनी बेटी मिल जाती है और वो अपनी बेटी को विल के हवाले कर देती है और विल और उसकी बेटी घर से बाहर चले जाते हैं। फिर मदर्स ऊपर जाकर एक कमरे में हेक्टर को मिलती है। हेक्टर उसे पकड़ लेता है लेकिन मदर्स उसे अपने चाकू से मार डालती है और उस घर को जला देती है और फिर वहां से वो चली जाती है। उसके बाद इन तीनों को एक शॉप के बाहर दिखाया जाता है। मदर्स की बेटी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी माँ हो? वो कहती है नहीं। फिर मदर्स विल को कहती है कि मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ और तुम मेरी बेटी को उसके सौतेले माँ बाप के पास छोड़ देना। फिर विल मदर को बताता है कि तुम्हारी बेटी को भी सच जानने का हक है, लेकिन मदर्स वहां से दुखी होकर निकल जाती है। जब वो अपनी बेटी को रोते हुए देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती। वहां से एक बाइक लेकर उसके पीछे चली जाती है। रास्ते में विल की गाड़ी से एक और गाड़ी आकर टकराती है। गाड़ी के टकराने से विल वहां पर बेहोश हो जाता है और मदर्स की बेटी बहुत जख्मी हो जाती है और विल को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और मदर्स की बेटी को आकर एड्रियन पकड़ लेता है और एड्रियन उससे मदर्स के बारे में पूछता है, लेकिन तब वहां पर मदर्स भी आ जाती है। लेकिन एड्रियन विल को वहीं पर गोली मार देता है जिसकी वजह से विल वहीं पर मर जाता है। फिर वहां पर मदर्स एक धमाका करके वहां से निकल जाती है और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर सीधा जोन्स के घर चली जाती है और अगले दिन वो अपनी बेटी को गाड़ी चलाना सिखाती है ताकि उसकी बेटी अपनी जान बचाकर वहां से निकल सके। उसके बाद मदर्स अपनी बेटी को चाकू और गोली चलाना भी सिखाती है और उसकी बेटी अपनी माँ की तरह एक्सपर्ट होती है और वो ये सब बहुत ही जल्दी सीख लेती है। फिर वो अपनी बेटी को पास वाली जगह पर माइन्स लगाना भी सिखा देती है और अगले दिन जब मदर्स उठती है तो उसे वहाँ पर उसकी बेटी नजर नहीं आती और वो जब बाहर जाकर देखती है तो उसकी बेटी भेड़िए के बच्चों के साथ खेल रही होती है। भेड़िए का एक बच्चा उसे काट लेता है। फिर मदर्स अपनी बेटी को पास के अस्पताल में ले जाती है और उसका इलाज करवाने के लिए। फिर मदर्स देखती है कि डॉक्टर उसकी बेटी के नाम की बहुत तारीफ कर रहा है और वो अपनी बेटी को वहां से लेकर जोन्स के घर वापस आ जाती है और उसे बताती है कि मेरी बेटी ने अपना नाम अस्पताल में बता दिया है जो वहां पर उसकी रिपोर्ट में है। अब एड्रियन यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकता है। फिर मदर्स अपनी बेटी को वहां पर छोड़कर चली जाती है और रात को एड्रियन अपने आदमियों के साथ वहीं पर पहुंच जाता है और जोन्स मदर को फोन करके ये सब बता देता है।
और मद्दर्स की बेटी को उस जगह पर एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि उसकी माँ ने उसे अस्पताल में छोड़ दिया था, लेकिन उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हमेशा उसे बचाना चाहती है। फिर मद्दर्स की बेटी जोन्स की गाड़ी लेकर अपनी माँ के पास निकल जाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एड्रियन भी आ जाता है और जब एड्रियन वहाँ पर माइंस देखता है तो वो माइंस से इनके घर को उड़ा देता है। फिर मद्दर्स एड्रियन के एक आदमी को मारकर उसके कपड़े पहन लेती है और वो अपनी बेटी की तरफ चली जाती है। एक आदमी मद्दर्स की बेटी को पकड़ लेता है, लेकिन मद्दर्स भी वहाँ पर आ जाती है और वो उस आदमी को वहीं पर मार डालती है। फिर मद्दर्स अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आगे की तरफ निकल जाती है। फिर मद्दर्स अपनी स्नाइपर से एड्रियन के आदमियों को मारना शुरू कर देती है। फिर एड्रियन मद्दर्स की बेटी को अपनी गन का निशाना लगाता है और मद्दर्स को अपने पास बुलाता है और वो मद्दर्स की बहुत तारीफ करता है। उसके बाद ये दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और उसी दौरान मद्दर्स को कोई गोली मार देता है जिसकी वजह से वो गिर जाती है और एड्रियन उसकी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और मद्दर्स को लगने वाली गोली उसकी बेटी ने चलाई थी, वो नमक वाली गोली थी जो एड्रियन को चकमा देने के लिए उसने चलाई थी। ये जानकर मद्दर्स बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ एड्रियन मद्दर्स की बेटी को एक गाड़ी में लेकर जा रहा होता है। फिर मद्दर्स अपनी गन से उस पर निशाना लगाती है और एड्रियन वहीं पर मर जाता है। फिर मद्दर्स की बेटी उसे आकर मिलती है और ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।